تم نے اتنے سالوں میں اتنے پیسے خرچ نہیں کیے جتنے آج ایک دن میں کر دیے ہیں۔ اتنی مہنگی پارٹی دی ہے، ماننا پڑے گا، صدف نے پیزا کھاتے ہوئے کہا۔ تم جانتی نہیں ہو صدف، یہ ڈگری میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، یشوا نے اپنی سہیلی سے کہا۔ صدف اور یشوا بیسٹ فرینڈز تھیں۔ یشوا کی واحد دوست صدف ہی تھی۔ آج یشوا نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی تھی، جس پر وہ بہت خوش تھی۔ یشوا ایک مڈل کلاس گھرانے سے بلونگ کرنے والی سادہ سی لڑکی تھی، جو اپنی ماں کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ یہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے والد نے اس کی ماں کو طلاق دے دی اور وہ اپنی 2 سالہ بیٹی کو لے کر ان کا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ یشوا نے اپنی ماں کو شروع سے محنت کرتے پایا تھا اور وہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی تعلیم کا بوجھ اپنی امی پر نہیں پڑنے دیا اور گریجویشن کرنے کے بعد ساتھ ساتھ نوکری کرنا بھی شروع کر دی۔ وہ بہت حساس مزاج کی تھی۔ آج پاس ہونے کی خوشی میں اس نے صدف کو پارٹی بھی دی تھی۔ اب وہ دونوں آئس کریم کھانے کے بعد ہی گھر جاتی، جو کہ یشوا کی پسندیدہ تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ آئمہ نے آفس کے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ کم ان، آلیان نے فائل پر نظر ہٹائے بغیر کہا۔ سر میں بھی جاؤں؟ میری چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، آئمہ نے کہا۔ آلیان نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ آئمہ شارٹ کرتے اور پینٹ پہنے ہوئے تھی۔ ڈنر پر چلو گی میرے ساتھ؟ سر وہ کیا؟ بعد میں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ آؤ کم آن، میں جانتا ہوں تم سب لڑکیاں کتنے انتظار میں رہتی ہو میرے ساتھ جانے کے لیے۔ اوکے سر، چلیں۔ آئمہ سچ میں چاہتی تھی کہ وہ اسے روکے، کیونکہ وہ ڈیلی آفس کی کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ ڈنر پر جاتا تھا، بعد میں شاپنگ بھی کرواتا تھا۔ وہ جتنا امیر تھا اتنا ہی شاہ خرچ بھی اور اتنا ہی دل پھینک بھی۔ اس کے خیال سے کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو خریدی نہ جا سکے، پھر چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ اسے آج تک محبت ہوئی ہی نہیں تھی، کیونکہ جس طرح کی محبت اس نے آفس کی لڑکیوں کی اپنے لیے دیکھی تھی، اسے محبت بکاؤ ہی لگتی تھی۔ یشوا جانی، اٹھ جاؤ میری جان، آج انٹرویو بھی ہے تمہارا۔ سعیدہ نے اس پر سے کمبل اٹھایا۔ ماما اٹھ رہی ہوں نا۔ یشوا نے دوبارہ کمبل کھینچا۔ اٹھ جاؤ جان، نماز کا ٹائم نکل جائے گا۔ لے اٹھ گئی آپ کی جان۔ یشوا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرا بچہ جلدی سے نماز ادا کر لو۔ اوکے امی جان۔ یشوا نے کمبل ہٹایا اور بیڈ سے نیچے اتری۔ دیکھنا نگہت حسن بہت لکی جانے گا خود کو، سعیدہ بیگم نے کہا۔ اچھا وہ کیوں؟ نگہت نے پوچھا۔ نگہت مکان مالک جو ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میری بیٹی جتنی تابع دار ہے نا، ایسی کم ہوگی لڑکیاں۔ دیکھیں آنٹی، لکی تو میں ہوں، حسن نے کہا، جو جانے کب سے سعیدہ بیگم کی کرسی کے پیچھے کھڑا تھا۔ ارے تم کب آئے؟ وہ کھلا گئی جب سے آپ اپنی بیٹی کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ اچھا تو آپ کو میری تعریف ہضم نہیں ہوئی؟ یشوا کمرے سے باہر آتے ہوئے بولی۔ ارے لکی تو میں تب سے ہوں جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے، اب بس رخصت کر کے آنٹی اور لکی کر دیں گی مجھے۔ حسن کی بات پر سب کھلکھلا کر ہنسے۔ یشوا اور حسن کے نکاح کو 2 سال ہوئے تھے۔ حسن اس سے بہت محبت کرتا تھا اور یشوا بھی۔ سر ہم نے انٹرویو لے لیے ہیں آپ کی سیکٹری کے لیے، 2 لڑکیاں فائنل ہوئی ہیں، ان کا آپ انٹرویو لے لیں، سدرا نے آلیان سے کہا۔ اوکے بھیجو۔ 2 منٹ بعد ایک لڑکی اجازت لے کر داخل ہوئی اور آلیان نے اس کا انٹرویو لیا۔ وہ دیکھنے میں پینڈو لگ رہی تھی۔ اس نے میک اپ تو اپلائی کیا تھا، مگر اسے کب اور کیسے یوز کرنا ہے یہ بیچاری نہیں جانتی تھی۔ آلیان نے اسے بھیج کر نیکسٹ کو بلایا۔ اب کی بار کمرے میں داخل ہونے والی لڑکی نے پینٹ ٹراؤزر اور قمیض پہنی تھی، دوپٹہ پھیلا کر لیا تھا، میک اپ کے لیے بس لپسٹک لگائی تھی، وہ بھی لائٹ سی۔ وہ سلام کر کے بیٹھی۔ آلیان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کا سفید رنگ اس وقت لائٹ کر رہا تھا۔ وہ سچ تھا، اس کی سادگی میں بھی اٹریکشن تھی۔ سر فائل۔ یشوا نے فائل دی۔ اوکے یو آر اوکے فار دس جاب، آلیان نے مسکرا کر کہا۔ لیکن سر آپ نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ مس یشوا، آپ کو میں نے سلیکٹ آپ کے کانفیڈنس پر کیا ہے۔ تھینک یو سر۔ ڈیٹیلز آپ کو سدرا بتا دیں گی۔ ناؤ گو۔ آلیان کے کہنے پر وہ باہر چلی گئی۔ امی آپ نے میڈیسن کیوں نہیں لی؟ آلیان مسز جاوید سے بولا۔ تم کدھر تھے؟ روز لیٹ گھر آتے ہو، جانتے ہو میری دوست بتا رہی تھی کہ تم روز کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر جاتے ہو۔ میں نے کہا میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ میں نے ٹھیک کہا نا؟ انہوں نے اس کے گال کے سائڈ پہ ہاتھ رکھا۔ امی سو جائیں آپ، میں صبح ملوں گا۔ وہ نظر چرا گیا۔ اچھا تم میرے لیے اب بہو لے آؤ نا، میں بور ہو گئی ہوں اب۔ عدیل بھائی کی شادی کر دی نا، اب بس کریں۔ وہ چڑ گیا۔ 2 ہی تو بچے ہیں میرے، دونوں کی ہی کروں گی۔ آلیان علی تم بھی آرام سے مان جاؤ، وہ پیار سے بولی۔ کیسے بتاؤں امی، آج کل لڑکیوں کو تو بس پیسہ چاہیے اور مجھے شادی کی کیا ضرورت؟ ویسے بھی میرے آفس کی لڑکیاں میرے ایک دفعہ کہنے پر ڈیٹ پہ نکل جاتی ہیں۔ ایسی بیوی میں نہیں چاہتا، کل کو مجھ سے زیادہ امیر دیکھے تو چھوڑ جائیں گی۔ مجھے نفرت ہے محبت سے اور ان لڑکیوں سے، جھوٹی مکار اور دھوکے باز۔ وہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔
यशवा, टाइम काफी हो गया है, तुमने जाना नहीं? आलिया ने देखा तो सब जा चुके थे। वो अकेली काम कर रही थी। यशवा ने आलियान को देखकर दुपट्टा सर पे ले लिया। सॉरी सर, टाइम का पता नहीं चला। वो उठ खड़ी हुई। अच्छा, मैं ड्रॉप कर दूंगा। नो नो सर, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं लेने। यशवा ने फाइल उठाते हुए कहा। अच्छा, तुम शादीशुदा लगती नहीं। सर, अभी रुखसती नहीं हुई। ओ अच्छा, तो कर लो रुखसती। आलियान ऊंचा हंसकर बोला। जी सर। वो शर्मिंदा हुई। पसंद की शादी है? आलिया ने फिर पूछा। जी सर, उनकी तरफ से। ओ प्लीज, तुम लड़कियां मानती क्यों नहीं कि तुम लोग भी प्यार की शादी कर सकती हो? आलियान को कोफत हुई। सर, मैं सच कह रही हूँ। वह हैरान हुई। अमीर है वो? फिर सवाल आया। जी सर, अपना घर है। मेरे लिए जैसे भी हैं मुझे कबूल है। ओके, एक एडवाइस दूं? उसने उसके जवाब में कुछ ना कहा बल्कि सवाल मजीद पूछ लिया। ज्यादा दिखावा मत किया करो, जो अंदर से हो वही दिखाया करो। आलियान बेझिझक बोला। सर, मैं चलती हूँ। वो भागती हुई बाहर निकली। कितना पागल है, क्या बोल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो सारा स्टाफ इतना फ्री है, उससे क्या करूं? वो सोचती हुई चली गई। सर, ये फाइल। यशवा एकदम कमरे में दाखिल हुई। आलियान के हाथ में सिद्रा का हाथ था। सिद्रा ने एकदम पीछे किया। यशवा तो बस हक्का बक्का देख रही थी। तमीज नहीं है तुम में? आलिया ने ऊंची आवाज में कहा। आई एम सॉरी सर। वो घबराकर बाहर निकल गई। तुम मेरी शक्ल क्या देख रही हो, दफा हो जाओ, और अब कोई मुझे भी डिस्टर्ब ना करे। आलिया ने सिद्रा से कहा। वो इसके गुस्से से वाकिफ थी। वो गुस्से में बहुत ही रूड हो जाता था। 5 मिनट बाद आलिया ने बाहर कॉल की। यशवा को भेजो अंदर। आलिया ने बाहर कॉल की और 2 मिनट बाद यशवा अंदर दाखिल हुई। अब उसका गुस्सा ठंडा हो चुका था। यस सर। वो डर डर कर बोली। देखो, कोई इखलाकियात भी होती हैं। तुमने गलत हरकत की थी। मैं नहीं जानती अंदर क्या हो रहा था। अगर आपके और सिद्रा के दरमियान कुछ है तो आप ऑफिस में ऐसे हमें अनकंफर्टेबल नहीं कर सकते। वो आहिस्ता बोली मगर लहजा थोड़ा सख्त था। तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली? और क्या मतलब है मेरे और सिद्रा के दरमियान? इस ऑफिस में जितनी लड़कियां हैं ना, 70% मेरे साथ डेट पे, शॉपिंग पे और होटल्स में जा चुकी हैं। इन सबके तो मुझे नाम भी नहीं पता। और जो तुम सती स्वेत्री बन रही हो ना, अभी नहीं हो डियर। आलियान वजी अंदाज में बोला। मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारी शार्ट लीव आई है क्यों? क्योंकि मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं शादी की तारीख पक्की करने। वो बोली। अच्छा, तुम्हारा शोहर भी आएगा? आलिया ने मुस्कुरा कर पूछा। जी। यशवा नर्वस थी। अच्छा जाओ, और सुनो, पिछली एडवाइस याद है ना? आलिया ने कहका लगाया। वो इग्नोर करके चली गई। अम्मी, आप मेरी फिक्र ना करें, कर लूंगा ना शादी। आलियान चिढ़ गया था रोज की बहस से। मैं कुछ भी नहीं जानती, शादी तो बस अब करनी ही पड़ेगी। तौबा करो, 30 तक तो तुम पहुंच जाओगे, तुम 2 साल बाद। मिसिस जावेद बोली। अम्मी, आपसे मुझे बहुत मोहब्बत है। मैं शरीक नहीं करना चाहता किसी को इस मोहब्बत में। वो उनके गले लगा। अच्छा, मस्के मत मारो, मैं लड़की ढूंढ रही हूँ। जैसे ही अच्छी मिली तुम्हारी शादी कर दूंगी। वो साड़ी का पल्लू पकड़ते हुए बोली। इसके बाद का नुकसान आप उठाएंगी, आलिया ने उन्हें छेड़ते हुए कहा। वो अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था। सबसे ज्यादा मोहब्बत उसे सिर्फ अपनी माँ से थी। सबसे ज्यादा। शायद गलत होगा, बस वो करता ही 2 लोगों से मोहब्बत था, एक खुद से और दूसरा माँ से। यशवा, बात सुनो। आलियान चिल्लाते हुए उसके पास आया। यस सर। वो गड़बड़ा कर उठी। तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है और तुम 1 मंथ की छुट्टी पे जा रही हो। सर, आपको बताया था मेरा निकाह हो चुका है, पर तुमने अभी तो ज्वाइन किया है। सर, डोंट थिंक कि मैं जॉब छोड़ दूंगी। पक्का? आलिया ने कहा। यस सर। पक्का प्रॉमिस? आलिया ने हाथ बढ़ाया। जी, मैं चलती हूँ, टाइम हो गया है। वो भी बोल ही रही थी कि आलिया ने उसका हाथ पकड़ के अपने हाथ पे रखा और दूसरा हाथ फिर उसके हाथ के ऊपर। यशवा तो डर ही गई थी। उसको लगा जैसे वो अभी गिर जाएगी। ओ बेबी, डोंट बी सो शाय। आलियान उसका हाथ छोड़ नहीं रहा था। सर, मैं चलती हूँ। यशवा ने हाथ छुड़ाया और भागकर ऑफिस से निकली। वो इसे जाता देखकर मुस्कुराया। आलिया, तुम कब तक किसी न किसी का पीछा करते रहोगे? शादी कर लो ना। आयमा ने खाना खाते हुए कहा। वो दोनों किसी बड़े रेस्टोरेंट में बैठे थे। मैं जब भी शादी करूंगा तुमसे नहीं करूंगा, डोंट वरी। उसने हाथ साफ करते हुए कहा। ओह, तुम कितनी आसानी से बात कर देते हो। कोई क्या सोचे ये भी नहीं सोचते। आयमा ने मूड बनाया। हाँ, ज्यादा से ज्यादा तुम नेक्स्ट मेरे साथ नहीं आओगी। आई डोंट केयर। यार, तुम भी अजीब हो। वो हैरान हुई। अच्छा, मुझे लगता है कि मेरी तलाक अब खत्म हो रही है। कौन है वो? आयमा बमुश्किल मुस्कुराई। यशवा। आलियान की बात पर उसे झटका लगा। क्या जानती हो, जब वो पहले दिन मेरे ऑफिस आई तो मुझे बहुत खूबसूरत लगी उसकी बातें, जिस मोहब्बत से वो मुझे सर कहती है। यार, आलियान मुस्कुराया। पर उसकी तो शादी होने वाली है। वो जवान 25-26 साल की लड़की थी और खूबसूरती से ज्यादा उसने खुद को अच्छा रखा हुआ था। मैं क्या करूं? मैं उसके शोहर से ज्यादा अमीर हूँ। कभी ना नहीं करेगी। ओह, ये खुद पसंद इंसान भी कभी समझ नहीं आता जितना खूबसूरत है
सड़ू भी उतना ही है। आयमा ने सोचा। आफ्टर 2 days, सर आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? उसने आज ऑफिस में यशवा को बोला, शादी के लिए कहा था। हाँ तो देखो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे शोहर से ज्यादा अमीर भी हूँ, तुम्हारे पास ना का जवाब ही नहीं। आर यू ओके? आप ये उस लड़की से बात कर रहे हैं जिसकी कुछ दिनों में शादी है। कितने खुद पसंद इंसान हो आप जरा जरा मेरे क्लोज होना चाह रहे थे तो मैंने ऑफिस से जल्दी घर जाना शुरू कर दिया और आपने कितना कुछ सोच लिया। यशवा का दिल कर रहा था उस इंसान का सर फाड़ दे। हा हा हा, वाट अ जोक। तुम्हारे ना से मैं तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा जान। आलियान ने उसे छोड़ा। मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ, वो बोली। आप नहीं छोड़ सकती, आपने साल तक इधर काम करने का एग्रीमेंट किया हुआ है, जो इस ऑफिस का हर फर्द नौकरी के वक्त करता है। वो फातिहाना मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं आपको देख लूंगी। हाँ हाँ जरूर, फिर तो हाँ करनी है। आलिया ने कहा। आफ्टर 2 weeks, सर आज मेरी मेहंदी है, मुझे जल्दी घर जाना है, सब ऑफिस के लोग छुट्टी कर गए हैं। यशवा ने कहा। वो आलियान की सेक्रेटरी थी, इस वजह से वो सबसे लेट छुट्टी करती थी क्योंकि उसके काम ज्यादा होता था। चलो मैं छोड़ दूं, आलिया ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। जी। यशवा उसके साथ चलकर गाड़ी में बैठ गई। इस बात को 2 हफ्ते गुजर चुके थे और यशवा को लगा था वो समझ गया है कि यशवा उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि इन 2 हफ्तों में इसने यशवा से कोई फजूल बात नहीं की थी। यशवा ने उसे इनविटेशन कार्ड दिया और उसने ले भी लिया था। यशवा ने इसलिए उस पर भरोसा कर लिया था। वो हसन से बहुत मोहब्बत करती थी और अब वो हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। वो खुश थी। वो अपने ख्यालों में खोई थी कि अचानक गाड़ी रुकी। गाड़ी एक घर के अंदर ग्राउंड में रुकी थी। वो घर न जाने किसका था। यशवा के दिल में खतरे की घंटी बजी। ये किसका घर है? वो अचानक बोली। अंदर आओ, कुछ दिखाना है। वो गाड़ी से उतरा। यशवा भी उसके पीछे उतरी और उसके पीछे चलती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। घर खूबसूरत था, छोटा था, मगर नफीस सजा हुआ था। सर ये किसका घर है? मैं लेट हो रही हूँ। ये 3 दिन के लिए तुम्हारा घर है, ओके? और तुम इधर ही रहोगी, ओके? मतलब? यशवा ने हैरानगी से पूछा। तुमने ना की है ना? अब तो तुम 2 दिन यहाँ रहोगी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम यहाँ रहोगी। फिर जब तुम 2 दिन बाद घर जाओगी तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें अपना लिया या तुम्हारे शोहर ने अपना लिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर ना अपनाया तो भी मैं अब शादी नहीं करूंगा तुमसे, क्योंकि मुझे अब तुमसे नफरत है। तुम बहुत झूठी और फेक हो। आलिया ने उसे देखते हुए कहा। उसे लगता था कि यशवा फेक है, क्योंकि उसने आज तक इतनी अच्छी लड़की देखी ही नहीं थी। आप ऐसा नहीं कर सकते आलियान, मेरी शादी है कल, अगर मैं घर ना गई तो कोई नहीं समझेगा मुझे, मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, सब मुझे गलत समझेंगे, मैं रुस्वा हो जाऊंगी। प्लीज ऐसा मत करें, प्लीज। वो मिन्नत कर रही थी। ओ अच्छा, जो शोहर की तारीफ करती थी ना, तुम 2 दिन बाद तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा, समझी? तुम अब देखना उसका प्यार खुल के सामने आता। अगर ये बात है तो देखना वो मुझे तब भी कबूल करेगा, और मैं क्यों करूं तुम जैसे घटिया इंसान से शादी? तुमने लड़कियों को खेल समझा है। मैं कोई ऐरी गैरी नहीं हूँ जो तुम्हारे पैसे पे मर जाए। तुम्हें मुझे जितने दिन रखना है रखो, मुझे मेरे शोहर पे भरोसा है, वो तुम जैसा घटिया नहीं है। यशवा चिल्ला कर बोली। ओके फिर रहो यहाँ, वो कहकर बाहर निकल गया। आफ्टर 2 days, चलो आज मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ और फिर तुम्हारा तमाशा देखूंगा। आलिया ने सुबह सुबह आते ही उसे हिलाकर कहा, जो दीवार से टेक लगाकर सर घुटनों में देकर बैठी थी। 2 दिन वो बस खाना देने आता था और उसे एक कमरे में बंद किया हुआ था जहाँ उसके सिवा कोई और नहीं आता था। आता भी कौन? वॉचमैन के अलावा वहां कोई भी नहीं था। यशवा ने 2 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया था, खाती भी कैसे? घर में सब दुल्हन के इंतजार में थे और वो यहाँ थी। कमरे में हर आसाइश थी, मगर वो उधर ही टेक लगाकर बैठी रही थी और रोती रही थी। आलियान को तो कहा था कि कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर उसके अंदर डर था। उसने उठकर आंसू साफ किए और साथ ही चल पड़ी। आधे घंटे बाद वो उसके घर के दरवाजे पे थे। उसने हिम्मत करके घर में कदम रखा। आलियान उसके पीछे आया। अम्मी, लड़खड़ाती आवाज में यशवा ने कहा। उसकी माँ, जो ना जाने कब से उसके इंतजार में बाहर सेहन में कुर्सी पर बैठी थी, उसकी आवाज के ताक़ुब में देखते ही उसकी तरफ बढ़कर उसको गले लगा लिया। यशवा, यशवा मेरी जान, मेरा बच्चा, किधर थी तुम? उन्होंने उसके गाल चूमकर पीछे खड़े आलियान को देखा। तुम इसके बॉस हो ना? उन्होंने पहचान लिया। जी, और ये 2 दिन से मेरे साथ ही थी। उसकी आवाज उसकी माँ को हैरान कर गई। आलियान चला गया। यशवा, घर में सब तुम्हारी शादी के लिए इकट्ठे हुए थे और जाते जाते 100 बातें सुना कर गए हैं, और तू इसके साथ थी। आंसू उनकी आंखों से टपक पड़े। वो जानती थी कि उनकी बेटी गलत नहीं थी, मगर ये भी जानती थी कि कोई उनकी बात पे यकीन नहीं करेगा। यशवा, तुम इस आदमी के साथ थी, तुमने क्या कर दिया? हाय, लोग आगे ही तेरी बातें कर रहे हैं, अब क्या कहूँ मैं? निगत ने ऊंचा ऊंचा कहना शुरू कर दिया। मेरी बात तो सुनो आप लोग, वो बेबसी से बोली। तूने जो करना था कर लिया, अब क्या हो सकता है?
निगत ने कहा। टेबल पे पड़े फोन की घंटी बजी। हसन का फोन देखते ही यशवा ने उठाया। हेलो हेलो हसन, मेरी बात सुनो, उसने फोन कान से लगाते ही कहा। मगर दूसरी जानिब वो जो बोल रहा था यशवा को चुप करवा दिया। फोन कान से लगाकर उसकी आंखों से आंसू लड़ियों की तरह टपक रहे थे। उसने फोन कान से हटाकर माँ को देखा जो चुपचाप उसे देख रही थी। क्या कहा उसने? कब आ रहा है रुखसती करने? निगत बोली। उसने मुझे तलाक दे दिया आंटी। क्या? निगत ने कहा और सईदा यकदम नीचे गिर गई। अम्मी, यशवा चिल्लाई। आंटी, अम्मी कैसे छोड़ के जा सकती हैं मुझे? मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी। उन्होंने सोचा भी नहीं। यशवा ने निगत के गले लगकर कहा, सईदा को इस दुनिया से गए 1 हफ्ता हो गया था। वो यशवा को छोड़ के चली गई थी। वो अपनी बेटी को इस हाल में देख नहीं पाई थी। यशवा, तुमसे एक बात करनी थी। निगत आहिस्ता से बोली। जी? यशवा ने उनके चेहरे को देखा। वो मोहल्ले वाले बातें बना रहे हैं, तो मेरे घर से चली जाओ प्लीज। मेरे लिए मुश्किलात मत खड़ी करो। निगत ने नजर चुराते हुए कहा। मैं कहाँ जाऊंगी आंटी? वो दुख से बोली। मैं नहीं जानती, बस तुम सुबह तक चली जाओ। वो कहकर चली गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि निगत आंटी ऐसा करेंगी, मगर वो मजबूरी समझती थी उनकी, तो अपनी जिंदगी उसके लिए खराब नहीं कर सकती थी। जब उसको उसके प्यार ने छोड़ दिया तो उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो घंटों बैठकर सोचती रही। फिर उसने कुछ सोच समझकर पेज लिया और एक खत लिखा। साहिब जी, कोई औरत आपसे मिलने आई है, चलें। आलियान कमरे में था जब नौकर ने आकर पैगाम दिया। वो उसके साथ गेस्ट रूम में आया और उधर बैठी लड़की को देखकर ठहर गया। बेटा, ये तुम्हारी दोस्त आई है। तुमने जो कुछ इसके साथ किया उसने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम इससे शादी कर लो। मिसेस जावेद ने कहा। आलियान अब तक सोफे पे बैठी लड़की को देख रहा था जो बहुत सादा हुलिये में थी। यशवा, आलियान ने पुकारा। कोई बहाना नहीं, बहुत तंग कर लिया मेरी बहू को। अब रात को निकाह है आपका, बस, और अब तुम जाओ, मिसेस जावेद ने हक से कहा। आलियान कमरे में दाखिल होकर अपना कोट फेंका और काउच पर बैठा सामने बैठी लड़की को देखा जो उस वक्त उसकी बीवी थी। रेड लहंगे पे गोल्ड की ज्वेलरी पहनकर वो हाई मेकअप से सजी हुई थी। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, वो गुस्से से बोला। मुझे नफरत है तुमसे, सख्त नफरत, और नफरत की इंतहा भी नहीं है कि कितनी है तुम सोच भी नहीं सकती। क्यों आई हो मेरे पास? ये मत समझना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने बस और बस माँ के लिए शादी की, क्योंकि तुमसे नहीं तो किसी और से करवा देती, और मैं अपनी माँ को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, समझी? जानते हो मैं क्यों आई हूँ तुम्हारे पास? तुमने मुझसे मोहब्बत की और मुझे रुसवा कर दिया। मेरी मोहब्बत पूरी नहीं हुई, मगर तुम्हारी मोहब्बत मैं पूरी करूंगी आलियान। सब भूल जाओ। वो प्यार से बोली। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, यू चीप गर्ल। वो कहकर बाहर निकल गया। नई नवेली दुल्हन उसे जाता देख रही थी। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम, आज आप जल्दी उठ गई? आलिया ने माँ से पूछा। जी बिल्कुल, मेरी बेटी ने मुझे उठाकर नाश्ते के लिए बुलाया है, वो फखर से बोली। हाँ हाँ अम्मी, आप भी ना। मैंने सोचा ये जनाब पता नहीं कब बेदार होंगे, हम भूखे क्यों रहें। वो किचन से मुस्कुराती हुई आकर बोली। रेड शर्ट, कामदार और रेड ही चूड़ीदार शलवार पे उसने बाल खोलकर आगे को किए थे। मैंने आपकी पसंद की हलवा पूरी बनाई है, मुझे भूख नहीं। वो उठकर जाने लगा था। अम्मी चलें हम भी रूम में, फिर हमें भी नहीं नाश्ता करना। खैर कोई बात नहीं। यशवा की बात पर वो रुका। यशवा ने मुंह बनाकर कहा, चलें अम्मी, खाना खा लें इकट्ठे। आलियान बैठ गया। यशवा और मिसेस जावेद धीरे से मुस्कुराई। मे आई कम इन सर? यशवा ने ऑफिस के दरवाजे पर आकर कहा। कम इन। आलिया नहीं जानता था कौन आया है। उसने लैपटॉप से नजर नहीं हटाई थी। हस्बैंड जी टाइम देखें, और आपको इतनी कॉल्स की। मैं परेशान हो रही थी तो खुद आ गई, यशवा ने कहा। आलिया ने नजर उठाकर उसे देखा। तुम क्या कर रही हो इधर? वो चिढ़ गया। अपने हस्बैंड को लेने, जिसकी बीवी घर उसका इंतजार कर रही है और वो ऑफिस में है, यशवा कहते हुए चेयर पे बैठ गई। तुम क्या साबित करना चाहती हो? हाँ, तुम बहुत मोहब्बत करती हो मुझसे। मैं जानता हूँ तुमको अच्छे से। निकल जाओ, मैं आ जाऊंगा। वो उठ गया। आलियान, हम सब भूल क्यों नहीं जाते? मैं आपको हर खुशी देना चाहती हूँ। मैं आपको कैसे समझाऊं? उसने आलियान का हाथ पकड़ा। जाओ यहाँ से। वो स्पार्ट लहजे से बोला। आप आ जाएंगे ना? यशवा ने फिर पूछा और जवाब ना पाकर चली गई। वो पूरी रात उसका इंतजार करती रही, मगर वो ढीठ शख्स नहीं आया था। इंतजार करते करते वो बाहरी हाल में सोफे पर सो गई थी। घर आते ही उसकी नजर यशवा पे पड़ी। मुझे माफ कर दो यशवा। उसने यशवा के हाथ पकड़ लिए और कहा। वो एकदम से उठ खड़ी हुई। क्या हुआ आपको? यशवा ने कहा। तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया, और मैं तुम्हें माफ नहीं कर सका। आज के बाद मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, हर गलत काम छोड़ दूंगा। देखना, मैं कभी भी किसी लड़की से नहीं मिलूंगा। सिर्फ तुम अब मेरी जिंदगी में रहोगी। प्यार दूंगा तुम्हें, इतना प्यार तुम सोच भी नहीं सकती। आलिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा। मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगी तुम सोच भी नहीं सकते, यशवा ने मुस्कुरा कर कहा। आफ्टर 1 ईयर, जानती हो यशवा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी जिंदगी बदल गई है, और अब ये बेटी देकर तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। जानती हो ना इस बच्चे के बारे में हमने कितने ख्वाब देखने हैं। अब हमारा रिश्ता मजबूत और मजबूत हो गया है। उसने अपनी बेटी उठाई हुई थी और यशवा से बातें कर रहा था। आलियान, हमारी बेटी बहुत प्यारी है।
میں اس پر برے لوگوں کا سایہ نہیں پڑنے دوں گی، دیکھنا۔ یشوا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا، اس کا نام کیا رکھیں؟ وہ مسکرا کر بولی۔ یشل، آلیان بولا۔ جانتی ہو یشوا، میں چاہتا ہوں یہ تم جیسی ہو، بالکل تم جیسی۔ نہیں، میں نہیں چاہتی یہ مجھ جیسی ہو۔ کیوں؟ میں چاہتی ہوں یہ بہت سٹرونگ ہو۔ مائی لو، مجھے یہ تم جیسی لگتی ہے۔ بلیک کرتا، وائٹ شلوار پہن کر، بال ہمیشہ کی طرح ایک سائڈ سے پیچھے کر کے ہلکے سے کھڑے کیے تھے، پنک کمبل میں لپٹی اپنی شہزادی کو اٹھائے ہوئے وہ ایک کمپلیٹ انسان لگ رہا تھا، وجی انداز کا مالک جس کی زندگی یشوا کی آمد سے کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ یشوا، اٹھ جاؤ، مجھے آفس جانا ہے۔ آلیان نے لیٹے ہوئے یشوا کو اٹھایا، مگر وہ ادھر نہیں تھی۔ آلیان نے اٹھ کر پردے ہٹائے۔ مجھے لگتا ہے پہلے ہی اٹھ گئی ہوگی، خود کلامی کرتے ہوئے باہر جانے لگا۔ اچانک اس کی بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے خط پر نظر پڑی، وہ اس کی سائڈ پہ پڑا تھا۔ اف، یہ لڑکی سرپرائز بہت دیتی ہے۔ اس نے مسکرا کر خط پکڑا۔ مسٹر آلیان، آپ نے میری زندگی خراب کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ میری ماں یہ دنیا چھوڑ گئی، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، میری مالک مکان نے بھی آج مجھے جانے کا کہہ دیا۔ میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ میں یہ نہیں کہوں گی کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اب مجھے تمہاری زندگی خراب کرنی ہے، اسی طرح جس طرح تم نے میری کی تھی۔ میں اب تم سے شادی کروں گی، اور جب تمہاری اولاد ایک بیٹی ہوگی نا، پھر تمہیں تمہاری بیٹی کے ساتھ چھوڑ کر چلی جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے، تاکہ پوری زندگی تم اپنی بیٹی کو اپنے جیسے آلیان سے بچاتے رہو۔ اب میں تمہیں پیار کی موت ماروں گی۔ آلیان حسن، تمہاری یشوا۔ آلیان نے جلدی سے چھوٹے بیڈ پہ دیکھا جو اس کی بیٹی کا تھا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ آلیان نے خط کے دوسری طرف دیکھا۔ وہ خط میں نے 1.5 سال پہلے لکھا تھا، جب میں نے اپنے مالک مکان سے کہا کہ بس مجھے ایک رات اس گھر میں رہنے دے، اور آج 1.5 سال بعد میں اس کا اگلا حصہ لکھ رہی ہوں۔ میں نے سوچا تھا آپ کی بیٹی کو آپ کے پاس چھوڑ کر جاؤں گی، مگر نہیں، جب میں ماں بنی ہوں تو محسوس کیا کہ نہیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آلیان، تم نے مجھ سے میری ماں چھین لی، آج میں تم سے تمہاری بیٹی چھین رہی ہوں۔ تم تڑپو گے اس کے لیے جیسے اپنی ماں کے لیے میں تڑپی ہوں۔ جب جب انہیں یاد کیا ہے، جب تم سے شادی کی تب سے جانتی تھی کہ مجھے تمہارے ساتھ کیا کرنا تھا۔ جب جب تمہارے ساتھ تھی مجھے جتنی تکلیف ہوتی تھی میں جانتی ہوں۔ اس شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ میں تم سے آج بھی شدید نفرت کرتی ہوں، اور اب تمہاری بیٹی میرے پاس ہے۔ جب اس کی زندگی میں کوئی آلیان علی آئے گا نا، تو تم اسے بچانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہوگے۔ کبھی بھی میرے اندر تمہارے لیے تھوڑی سی محبت آتی تھی نا، تو نفرت کو میں اور بڑھا لیتی تھی۔ مجھے تم سے نفرت ہے کہ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین کے مجھے کھوکھلا بنا دیا۔ جو یشوا تم سے نفرت کرتی ہے اس کو بھی تم نے ہی بنایا ہے۔ ہو سکے تو ہمیں مت بھولنا، تمہاری یشوا۔ خط مکمل ہو چکا تھا۔ آلیان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالی تھی آج پہلی بار وہ رویا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی برسات ہو رہی تھی۔ وہ یکدم چکرا کر گر گیا۔ مسز جاوید نے یشوا کا خط پڑھ لیا تھا، مگر آلیان کو ابھی تک ہوش نہیں آئی تھی۔ مسز جاوید اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ انہوں نے ان 1.5 سال میں جتنا اپنے بچے کو خوش دیکھا تھا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آج اسے اس حالت میں ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ یشوا، آلیان نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ آلیان، مسز جاوید آگے بڑھی، مگر یشوا، یشل کو مجھے دو نا۔ آلیان نے پاس صوفے کی طرف دیکھ کر کہا۔ مسز جاوید اس کو دیکھ کر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اچھا چلو ہم لوگ گھومنے چلتے ہیں، تمہیں میں راضی کر لوں گا، دیکھنا۔ اچھا چلو نا۔ وہ نہ جانے کس کو اٹھا رہا تھا۔ آلیان، مسز جاوید اس کے پاس آ کر بولی جو صوفے کے پاس کھڑا تھا۔ امی دیکھیں یہ مجھ سے ناراض ہے۔ اچھا آپ باہر جائیں، میں اسے راضی کر لوں گا، سمجھا کریں۔ کان پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر معافی مانگتے ہوئے، آپ اپنے بچے کو دیکھ نہیں سکیں گی، اب جائیں۔ مسز جاوید اس کے کہنے پر باہر نکل کھڑی ہوئی۔ آلیان نے دروازہ بند کر دیا۔ اچھا معاف کر دو نا، یشل بڑی ہوگی تو اپنے بابا سے تمہیں کبھی ناراض نہیں ہونے دے گی۔ آلیان کی آوازیں کمرے سے باہر آ رہی تھی۔